Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about January 2021 current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So friends, let us we talk about 18 January 2021 current affairs. But before that, let us we talk about some important news headlines related to the 18th of Jan 2021. So friends, today's first important news headline is India's first COVID-19 vaccine recipient is Manish Kumar. Manish Kumar, a sanitation worker in Delhi, became the first person to receive the COVID-19 vaccine in India after PM Modi flagged off the nationwide vaccine drive on 16 Jan 2021. Manish Kumar was also given the injection at AIIMS in Delhi, while Union Health Minister Dr. Harshvardhan Singh was also present. So, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता है मनीष कुमार, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। 16 जनवरी 2021 को पीएम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मनीष कुमार द फर्स्ट इंडियन कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट। Next important news headline of today's is Kiran Mazumdar-Shaw, as shown in the picture, selected as one of the USIBC Vice Chair. The USIBC or US India Business Council has selected 3 top corporate leaders as the Vice Chairs of 2021 Global Boards of Directors of USIBC with immediate effect. The 3 new appointees will now work with USIBC President Nisha Biswal and the Council Policy Directors for strengthening US-Indian commercial relationship for the future. किरण मजूमदार शॉ चुनी गई है USIBC की वाइस चेयरमैन। USIBC, आई रिपीट, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 3 टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तीनों नए लीडर्स अब USIBC अध्यक्ष निशा बसवाल और परिषद के नीति निदेशक के साथ मिलकर भविष्य के लिए US भारत वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज US designates UAE, Bahrain as major strategic partners. The United States has recently designated the Kingdom of Bahrain and the United Arab Emirates or UAE as the major strategic partners of the country. This has been announced before the formal transition of the president's office from Donald Trump to Joe Biden. This announcement of major strategic partners was done by Khaled McEnany, the White House press secretary. So, अमेरिका ने किया है UAE बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE को देश में प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई है। प्रमुख रणनीतिक साझेदारों की यह घोषणा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैलिग मैकनानी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज पाकिस्तान परमिट्स दुबई रॉयल्स टू हंट होबारा बस्टर्ड. Pakistan has issued special permission to Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Dubai ruler, the crown prince, and 5 members of the royal family for hunting Houbara bustard during the 2020-21 hunting season.
After the permission, 11 members of the UAE or United Arab Emirates royal family reached the Pangwar district of Balochistan, Pakistan for hunting the highly vulnerable and internationally protected Haubara bustard, as seen in the picture, Haubara bustard of Pakistan. Now in Hindi, पाकिस्तान ने दुबई रॉयल्स को हाउबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020 से 21 के शिकार सत्र के दौरान तिलौर हुबारा बस्टर्ड के शिकार को विशेष अनुमति जारी की है। अनुमति के बाद संयुक्त अरब अमीरात और यूएई के शाही परिवार के 11 सदस्य पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लाइसेंस के तहत अत्यधिक असुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित तिलौर हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने के लिए पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में पहुंचे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हाउबारा बस्टर्ड के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज रामचंद्र गुहा लेटेस्ट बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं, रामचंद्र गुहा लेटेस्ट बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट वुड बी लॉन्चिंग वर्चुअली इन द टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट दिस मंथ। His latest book juxtaposes his life with his abiding love for the games, and his conversation could not come at a better time with India and Australia in the midst of an athletic टेस्ट सीरीज। हमें पता होना चाहिए कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किताब के लेखक जो है रामचंद्र गुहा जी है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। So friends, now let us we talk about 18 January 2021 related current affairs. So today's first question is, किसे वर्ष 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? Who was awarded the Silver Salver Award for the year 2020? So answer is पृथ्वी पाल सिंह। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पृथ्वी पाल सिंह जी को सिल्वर साल्वर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? सो आंसर इज रवि गायकवाड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें याद रखना है कि रवि गायकवाड़ जी को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसे देश ने वायरस वैज्ञानिकी शी शेगली को बैट वुमन नाम से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड द वायरस साइंटिस्ट जी झागली विथ द नेम बैट वुमन? सो आंसर इज चाइना। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? Which country produced the world's first flexible bulletproof jacket? So answer is भारत, इंडिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? When did the world's largest vaccination campaign started in India? So answer is 16th of Jan 2021। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट द रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता वॉज इनॉग्रेटेड? सो आंसर इज स्टेट असम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट असम इज दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गेव green channel status to which security company? So answer is L&T Defense। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि L&T डिफेंस कंपनी को ग्रीन चैनल प्रोवाइड किया गया है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिल्म सिटी? सो आंसर इज स्टेट हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हरियाणा इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसने एरो इंडिया
2021 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? वो लॉन्च्ड एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन. सो आंसर इज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी. डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह launched the एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? Which state has added 3,67,000 families under आयुष्मान भारत स्कीम? So answer is उत्तर प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश इज लखनऊ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? Who became the chairman and CEO of Indian Railway Board? So answer is सुनीत शर्मा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा जी बने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल कर किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इक्वल्स विच फॉर्मर प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स? आंसर इज जोसेफ बिकेन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल बनाकर जोसेफ बिकान की बराबरी कर ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इन द पुलिस फोर्स अक्रॉस द कंट्री? सो आंसर इज 10.3%, 10.3%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इसरो ने कितनी अटल टिंकरिंग लैब को अडॉप्ट करने की घोषणा की है? इसरो अनाउंस्ड हाउ मेनी अडल्ट टिंकरिंग लैब्स टू बी अडॉप्टेड? सो आंसर इज 100 लैब्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन अग्नेस कैलेटी ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? Who is the oldest living Olympic champions? Agnes Kelly celebrating her birthday. So answer is 100th. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? What is the name of the country's first indigenous machine pistol developed by DRDO? So answer is ASMI और ASMI. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड फुल फॉर्म ऑफ DRDO इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as Vice President of USIBC? So answer is Kiran Mazumdar-Shaw, Milind Pant and Edward Knight. I repeat, Kiran Mazumdar-Shaw, Milind Pant and Edward Knight are the Vice President of USIBC. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. बिम्स्टेक और BIMSTEC के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as General Secretary of BIMSTEC? So answer is Tenzin Lakfel. I repeat, Tenzin Lakfel as appointed as General Secretary of BIMSTEC. Next question number 19. UBS इन्वेस्टमेंट बैंक ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? UBS Investment Bank has estimated the percentage of India's GDP or gross domestic product in the year 2021. So answer is -7.5%. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है? In which country the world's oldest cave painting was discovered? So answer is Indonesia. I repeat, Indonesia is the only country in the world in which the world's oldest cave painting was discovered. Important है, हमें याद रखना है, इंडोनेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 is the last question today. दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब भारत का कौन सा शहर बना है? Which India of
Which city of India became the fastest growing tech hub in the world? So answer is Bengaluru. Important है, हमें याद रखना है. And Bengaluru is the capital of state Karnataka. आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.